Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the stereoisomerism. Our previous topic we discussed isomerism, right? In isomerism we learned that there are two types. One is the structural isomerism, the other is the stereoisomerism. Structural isomerism is the one in which the atoms or the groups have different connectivity. If two or more molecules have the same molecular formula but they are connected differently, so the type of isomerism that arises due to their different connections will be called as structural isomerism. Now, the different connectivity may arise due to the different chains, which will give rise to chain isomerism. That can be due to the position of the functional group. So the isomerism will be called as position isomerism. Different connectivity may give rise to certain arrangement that will give different functional groups. So the type of isomerism will be called as functional group isomerism. Similarly, if there is different arrangement on both sides of the functional group, then the type of isomerism will be metamerism. And if the two isomers or more isomers differ from each other just on the basis of the position of the proton, then the type of isomerism will be tachomerism. Today we will discuss the stereoisomerism. So, in stereoisomerism, there is different arrangement of the groups. We have same connectivity. आपके पास जो ग्रुप्स होते हैं, जो आपके पास एटम्स होते हैं, उनकी कनेक्टिविटी सेम होगी. जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, सब के सब एक ही जगह पे अटैच होंगे. एक एटम एक मॉलिक्यूल में जहां पे अटैच है, दूसरे में भी वहां पे अटैच होगा. ठीक है, स्ट्रक्चर आपके पास सेम आएगा, राइट, बट देयर विल बी डिफरेंट ओरिएंटेशन. नाउ डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा आपके पास. ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ समथिंग इन स्पेस. अरेंजमेंट इन स्पेस, कि स्पेस में एक चीज जो है वो किस तरह अरेंज है, दैट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन. अगर आपके पास ओरिएंटेशन डिफरेंट है और बाकी स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, तो जो डिफरेंट आपके पास आइसोमर्स बन रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ वन अनदर, एंड द फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज स्टीरियोआइसोमेरिज्म. नाउ stereoisomerism can be divided into optical isomerism and geometrical isomerism. Now in optical isomerism we have different molecules having the same structure but different orientation such that they behave differently to plane polarized light. If the molecules differ from each other only in their behavior, yeah, you can say interaction towards plane polarized light, the isomers will be called as optical isomers and the phenomena will be called as optical isomerism or even optical activity. बस समझ में आ रही? Now यहाँ पे हमने
एक चीज का जिक्र किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बिहेवियर आपके पास डिफरेंट आइसोमर्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है, then that molecule will be called as optically active molecule। उसको हम कौन सा मॉलिक्यूल कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल उसको कहेंगे। अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरेक्शन शो नहीं कर रहा तो उसको फिर हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपके पास सिर्फ वो मॉलिक्यूल शो करेंगे जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव है कोई मॉलिक्यूल तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरेक्ट करेगा, अदरवाइज देयर विल बी नो इंटरेक्शन इफ द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लें कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। आपके पास जो ऑर्डिनरी लाइट होती है this is ordinary light। अब ऑर्डिनरी लाइट में जितने वेवलेंथ्स होते हैं दे आर इन ऑल द पॉसिबल प्लेन्स, दे आर ऑसिलेटिंग इन ऑल द पॉसिबल प्लेन्स। ठीक है, इसको मैं अगर यूं लिख दूं तो दे आर ऑसिलेटिंग इन ऑल द पॉसिबल प्लेन्स। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट में जितने भी आपके पास रेडिएशंस होंगे, जितने भी वेवलेंथ्स होंगे, सही है, तो उनकी ऑसिलेशन जो है, उनकी जो वाइब्रेशन है वो ईच एंड एवरी पॉसिबल प्लेन में होती है, राइट। और दूसरी बात ये है कि ये पॉलीक्रोमेटिक होता है, मैनी पॉसिबल वेवलेंथ्स यहां पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूं करेंगे कि इसको एक मोनोक्रोमेटर से गुजारेंगे। किस चीज से? मोनोक्रोमेटर से। सो मोनोक्रोमेटर से जब आप इसको गुजारेंगे तो वेवलेंथ आप जस्ट अ सिंगल काइंड, एक सिंगल टाइप का वेवलेंथ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपके पास जो लाइट आ जाएगी उसको अब हम कहेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, अब ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है दिस इज लाइक दिस। अब इसमें एक किस्म का वेवलेंथ मौजूद है which has two component, this is electromagnetic radiation, और electromagnetic radiation के दो components होते हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। ठीक है, बाकी जितने वेवलेंथ थे वो सारे निकल गए, आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, राइट। अब इसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को आप लें और इसको आप गुजारे एक प्रिज्म से, जिसको हम कहते हैं नाइकोल प्रिज्म। ये प्रिज्म मोस्टली कैल्साइट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको इससे गुजारेंगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास एक लाइट आ जाएगा which will contain only one component, either magnetic or electric। ठीक है, और इसको अब हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऑर्डिनरी लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गया। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट था, सबसे पहले मोनोक्रोमेटर से हमने गुजारा, आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट बन गया। मोनोक्रोमेटिक लाइट को फिर हमने नाइकोल प्रिज्म से गुजारा, उससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गया। सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में सिंगल वेवलेंथ का जस्ट एक कंपोनेंट मौजूद है, राइट। अब इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप एक मॉलिक्यूल से पास करें। यहां पे आपने कोई मॉलिक्यूल लिया हुआ है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस मॉलिक्यूल से जब गुजरेगा और यहां पे आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो तीन किस्म के रिजल्ट आपके पास आ सकते हैं। एक रिजल्ट तो ये होगा
कि जो लाइट है जिस तरह यहां पास होने से पहले था अब भी उसी तरह है। तो अगर इस लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब है कि जो ये मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास ये जो लाइट है ये इस तरफ किसी खास एंगल पे वो अगर बेंड होता है, यहां पे आप देखें तो राइट की तरफ वो बेंड हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर आपके पास ये लेफ्ट साइड की तरफ अगर बेंड हो रहा है तो ये भी शो करेगा कि जो मॉलिक्यूल है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई राइट की तरफ बेंड कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या पॉजिटिव साइन से भी इसको हम डिनोट करते हैं। अगर किसी आइसोमर के साथ प्लस का साइन आया है इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट। ठीक है? और अगर लेफ्ट की तरफ हो रहा है तो इसको फिर हम लीवो रोटेटरी कहेंगे। क्या कहेंगे? या इसको हम माइनस साइन से भी डिनोट करते हैं। अगर किसी आइसोमर के नाम के साथ माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब ये लीवो रोटेटरी है। इसका मतलब होगा कि इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहा है तो दैट मींस कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? लीवो रोटेटरी है। अगर राइट की तरफ कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्लियर हो गया? और अगर रोटेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें कोई डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेशन का सवाल नहीं पैदा होता, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इससे ये भी नतीजा निकलता है कि जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसमें दो किस्म के आइसोमर्स हमारे पास आते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर वो होगा जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ बेंड करेगा। लीवो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर वो आइसोमर होगा जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करेगा। क्लियर हो गया? अब कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? यहां पे हमने दो बातें की, या मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? बात समझ में आ रही है? तो अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। Next video will start. Let's talk about